Good morning, everyone. Today, thermal properties of matter, lecture number 9. Last time we discussed the doubts of assignment number 3. Doubts of assignment number 3, and in assignment number 3 there are 45 MCQs. I remember in the previous lecture, in assignment number 3, you can please cross check. We have done questions from maybe 1 to 45 or 1 to 46. Maybe. Will you please check? प्रैक्टिस पेपर 4 का सोल्यूशन दिया था लास्ट टाइम. प्रैक्टिस पेपर 4 का सोल्यूशन दिया था लास्ट टाइम. So we are going to solve the doubts of practice paper 4 today, right? Even after having the solution. जल्दी recording चल रही. बैग वहाँ दे. So, practice paper 4 solution was given. Practice paper 4 very good MCQs on basics of calorimetry, specific heat and latent heat. Now, what kind of questions? A piece of ice is falling from a particular height, right, and striking the ground. Then work done can be written as half mv square या तो mgh, right? If I drop a body from a particular height, obviously in the problem I mentioned the word height. In fact, you can see the value also, from a height of 20 meters, from a height of 100 meters, from a height of 200 meters. So it is very evident that for work done, you have to use the formula mgh. And then that piece of ice, if it is partially melting or completely melting, that means you have to use ml. Yes or no? Another example comes, you are firing a bullet with the velocity 300 meters per second. That bullet is penetrating through a metal block, and it remains inside, it remains embedded inside. So what is the temperature of the block now? इसका मतलब the bullet could not pass through the metal block. Metal block blocks it. Bullet remains inside. So now, in place of mgh, you have to use half mv square, and in place of ml, you have to use mc theta, because you have to find out the new temperature of the block. That means from the question itself, it will be very easy for you to understand कि W के लिए क्या यूज करना है और हीट के लिए क्या यूज करना है. Is this Joule's law? Is this Joule's law? Am I right? So if the problem is in terms of velocity, then work done should be half mv square, correct? And if the problem is in terms of height, then you should use mgh. Yes or no? So W is equal to half mv square or mgh. This is equal to J times Q can be ml या तो mc theta, depending on how the problem is set. अच्छे से समझा? इसका मतलब W is equal to JH, W is equal to J capital H या तो capital Q. H is heat energy, Q is also heat energy. W can be written as half mv square. If you have a problem of a bullet is fired from the revolver, striking the metal block or maybe striking the wooden block, it remains embedded inside, then what is the temperature of that metal block? Then it is half mv square. A piece of ice is falling from a tower which is 50 meters tall and strikes the ground. Part of the ice is melting, maybe not completely. 50% is melting, 25% is melting, 80% is melting. Then mgh, yes or no? Because now the problem is in terms of height. And if they say what will be the new temperature of the block, that means the problem is in terms of mc theta. So very simple. Work done can be written as half mv square or mgh. Energy, heat energy can be written as ml or mc theta. If you want, you can add this synopsis के पेज पे iPad notes में. मुझे याद नहीं बेटा ऐड किया था कि नहीं. If it is officially, oh yes, lovely. If it is officially part of your iPad notes, then will you please check? Yes. First law of thermodynamics में very beautiful it is given. Work done can be written as half mv square. Work done can be written as mgh. Work done can be written as I square RD. Your 9 standard, 10 standard knowledge. Electrical work done.
Yes sir? So we are going to solve this kind of problems. So anyways, it is already there in your notes. It is already there in your notes. Now before I start solving the doubts of practice paper 4, and if time permits, then the end questions of assignment number 3. अपना बेटा 46 to 55 pending है. Will you please cross check? Will you please cross check? Assignment 3 अपना 46 to 55 pending है. 46 हो चुका है. 46 हो चुका है. तो साथ साथ में 47 भी हो चुका है. अब मैं 48 सॉल्व करूंगा पूरा वापिस टाइम मिला तो, और वापिस हम लोग 46 47 पे जाएंगे. Because 46 to 55 का the style of solving is exactly the same. The philosophy of the problem is exactly the same. Right? So everybody here, first the graphical representation. इधर मैं जानबूझ के वो प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो आप लोगों को मैंने कॉपी करवाया था. How much heat energy is required to be supplied to a piece of ice of 100 gram at minus 10 degrees Celsius to steam at 110? याद करो बेटा, इसमें 5 steps थे. याद करो इसमें 5 steps थे. What were those steps? Ice at minus 10 is to be converted into ice at 0 is to be converted into water at 0 is to be converted into water at 100 is to be converted into steam at 100 is to be converted into steam at 110. That means if you see this sequence very carefully, right, then can I say when there is change of state, when there is change of temperature and change of temperature, there is no change of state, right? So if I think about Q1, Q3 and Q5, can I say for Q1, Q3 and Q5, the formula used is Q is equal to MC theta, या तो dq is equal to MC d theta. Yes or no? Because the heat energy is utilized in changing the temperature of the substance. But if you go from ice at 0 to water at 0 and water at 100 to steam at 100, that means there is change of state, there is no change of temperature. So can I say Q2 and Q4? Q2 and Q4. For Q2 and Q4. For Q2 and Q4, you are going to use the formula Q is equal to ml. Yes or no? For Q2 and Q4 you are using Q equal to ml, and for Q1, Q3 and Q5 you are using the formula Q is equal to MC theta. Okay, I have taken the same reference temperatures here, minus 10 to plus 100 and 10, plus 110, minus 10, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 110. On x-axis you are taking heat energy supplied. On x-axis you are taking heat energy supplied, right? So observe this pattern very carefully. What will happen in the first case? You are going from ice at minus 10 to ice at 0. You are going from ice at minus 10 to ice at 0. मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है. थोड़े टाइम के लिए when it is ice at 0 to water at 0, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because when there is change of state, right? अभी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या से टेम्परेचर वापस बढ़ेगा, right? So as heat energy increases, temperature increases. As heat energy increases, temperature increases. That means this is going to be like this. This is going to be like this. Yes or no? After that, again, we have reached water at 100 degrees Celsius. So to steam at 100 degrees Celsius, this will again be a straight line parallel to x-axis. Yes or no? And then again there will be rise in temperature. Again there will be rise in temperature. Yes or no? So what are these blue lines indicating? So what are these blue lines indicating? Right? So what are these blue lines indicating, students? This is Q2, no, Q1, Q3, Q5. So this is Q3, this is Q5, and this is Q1, the blue ones. Right? What about the red ones? This is Q2 and this is Q4. समझा बेटा? Now, one by one, mathematical understanding. Common sense apply करो बेटा. Slope of the graph क्या होता है?
स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है? चेंज इन वाई रीडिंग अपॉन चेंज इन एक्स रीडिंग। तो ये डायग्राम के हिसाब से ये क्या हुआ? चेंज इन वाई रीडिंग अपॉन चेंज इन एक्स रीडिंग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे थीटा लिया है मैंने और यहाँ पे क्यू लिया है, दैट मीन्स इज इट चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन क्यू। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी थीटा, और मुझे चाहिए डी थीटा अपॉन डी क्यू, टेम्परेचर अपॉन हीट, हीट अपॉन टेम्परेचर नहीं। सो व्हाट इज डी थीटा अपॉन डी क्यू फ्रॉम हियर? What is d theta upon dq from here? Is it 1 upon mc? Yes. Right? So this becomes the slope. This is 1 upon mc. And what is 1 upon mc? Reciprocal of, याद करो बेटा, mc was thermal capacity. mc was thermal capacity. So it is very very important you are plotting graph of what versus what. Right? कॉमन सेंस अप्लाई करो, सोच के आंसर दो। राइट? ये स्लोप किसके किसके लिए हुआ? 1 अपॉन mc। ये स्लोप किसके किसके लिए हुआ? फॉर q1 एंड q3 एंड q5, बराबर। व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ दिस? व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ दिस? सॉरी, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ is going to be zero. Is going to be zero. Why? Because when there is change of state, there is no change of temperature. मतलब ये ग्राफ के लिए और ये ग्राफ के लिए d theta is zero, and d theta is zero, that means numerator is zero. स्लोप का मतलब समझा बेटा? स्लोप का दो मतलब है। स्लोप is d theta upon dq also, and slope is 1 upon mc also, बराबर। लेकिन कौन से ग्राफ के लिए? q1, q3, q5, q2, q4 के लिए by default this slope is going to become zero. Now very tactfully what they do sometimes, they interchange theta and q. They interchange theta and q. So if we interchange theta and q, which means theta on x axis, बराबर, and q on y axis। तो बेटा ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा? तो फिर ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा? ध्यान से देखो, 1 2। अभी ये ग्राफ ऐसा जाके ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर वापिस ऐसा जाएगा, फिर वापिस ऐसा जाएगा, और फिर वापिस ऐसा जाएगा। सोचो, मतलब ये ग्राफ जो ऐसा था ना, उसके बदले ऐसा हो गया। आपने ये इंटरचेंज किया ना, राइट? दैट मींस ये ग्राफ, पहले तो मैं इसको q वर्सेस थीटा लिख लेता हूं, राइट? तो ये ग्राफ और ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कम ऑन, कॉमन सेंस। सॉरी, इनफाइनाइट। प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। क्योंकि अभी इसका स्लोप का मतलब क्या हो गया? इज इट dq अपॉन d थीटा, चेंज इन y रीडिंग अपॉन चेंज इन x रीडिंग। कॉमन सेंस अप्लाई करो। Nayan sir is walking on horizontal surface, zero slope. Nayan sir is walking on inclined plane, positive slope. Nayan sir cannot walk on the wall. Reason? Slope is infinity. Nayan sir is walking on horizontal surface, slope is zero, slope is positive. Now Nayan sir is climbing down, going down, slope is negative, slope zero, slope positive, slope infinity, स्लोप नेगेटिव। समझा बेटा? श्योर? आपके नोट्स में ये दिया होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा। मतलब आपको सोचो कितना ध्यान रखना है। थीटा और क्यू सिंबल वाइज ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, राइट? इट इज थीटा वर्सेस क्यू कि क्यू वर्सेस थीटा। इफ इट इज थीटा वर्सेस क्यू, देन स्लोप इज डी थीटा अपॉन डी, एंड इफ इट इज क्यू वर्सेस थीटा, देन स्लोप इज डी क्यू अपॉन डी थीटा, व्हिच इज गोइंग टू बी थर्मल कैपेसिटी। सोचो, व्हिच इज गोइंग टू बी थर्मल कैपेसिटी, राइट? ये ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए और ये ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा? इनफिनिटी, राइट? नो नीड टू डू एनीथिंग, वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन योर नोट्स, iPad notes, पेज नंबर 6 लेफ्ट साइड।
iPad notes पेज नंबर 6 लेफ्ट साइड. उधर एक छोटा सा काम करना खाली. वो ग्राफ कौन से रेफरेंस प्रॉब्लम के लिए है वो लिखवाता हूं मैं. लिखाइए मैंने तो देखो. द ग्राफ इज इन रेफरेंस विथ. द ग्राफ पेज नंबर 6 के लेफ्ट साइड पे नीचे लिखो एकदम बॉटम पे. द ग्राफ इज इन रेफरेंस विथ या तो इज इन अकॉर्डेंस विथ. The graph is in accordance with the numerical example of the numerical example of I set minus 10 degrees Celsius to steam at 110 degrees Celsius. minus 20 Sorry, minus 20 है minus 20 to 100 कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोगों ने क्या लिया था -10 की -20. वो मैंने प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. तू 0 के नीचे का कोई भी टेम्परेचर कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम. द ग्राफ इज इन अकॉर्डेंस विथ या तो इन रेफरेंस विथ I set minus 10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 110. समझा सबको बेटा? श्योर. बारी बारी से आप अपना नोट्स का लिटरेचर पढ़ो. iPad नोट्स पेज नंबर 6 लेफ्ट साइड बॉटम. बारी बारी से बोर्ड पे देखो. बाय चांस कुछ मिसिंग है तो वो ऐड कर दो. राइट. और एक छोटा सा नोट लिख के रखो. कीप द ग्राफ वॉच. मतलब ये मैंने नोट ही लिखा है. देखो ध्यान से. ये मैंने पूरा नोट ही लिखा है. दिस इज द नोट. दिस इज द नोट. If we interchange q is theta, that means we take theta on x-axis this time and q on y-axis. Then the graph will be like this. It is given. Very good. No need to write. Very good. मतलब मैंने वो छोटी-छोटी बातों का ध्यान दिया होगा. Different books में they make variations like this. चलो बेटा 3, 2, 1. Revise this answer. I am waiting for you. आज के लेक्चर तक मैं जो भी सिखाऊंगा वो संडे एग्जाम में है. आज के लेक्चर फर्स्ट वी विल टेक अप द डाउट्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर 4. सम वेरी गुड वैरायटीज, राइट. सम स्टैंडर्ड वैल्यूज आल्सो. Now first we will take care of practice paper 4. One by one बेटा मैं लाइन से जाऊंगा. आपके पास पूरा solution है, but there are some very good questions on specific heat and latent heat. Shall we start? So let us go for doubts of practice paper 4 first. Let us go for doubts of practice paper 4 first. Your duty. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट. पांचों के पांचों थियरी क्वेश्चंस है. तो जरा कैमरा संभालना. हेलो कैमरा संभालना, हिले नहीं. हाँ. क्वेश्चन नंबर 1 मैं लाइन से आंसर बोलता हूँ. द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू liquid substance. Solid to liquid या तो liquid to solid is latent heat of fusion. Yes or no? So your answer is fourth option. First question answer is fourth option. Second question, the factor not needed for the heat energy lost or heat energy gained if there is no change of state. Apply common sense. Apply common sense. Second question is when there is change of state. That means there is no change of state. That means there is change of temperature. So dq depends on mass and specific heat and temperature difference. Mass का मतलब it depends on weight also, right? It depends on specific heat and it depends on temperature.
That means it does not depend on relative density. Relative density का मतलब होता है density of the body upon standard density. It is density of the body, or as you can take it this way. एक simple example देता हूँ. If a body is floating on water, so it is weight of the body in water upon its original weight in air. Weight of the body in water या तो liquid upon weight in air. That is called relative density. See, it is something like this. Sir, I scored 78 marks out of 100. Right? So this is the ratio of two same things. That means it is a number. Right? Get up, please. Come little on this side. You should come in camera. Right? I am saying I am taller with respect to her. That means her height is say 170 centimeters and my height is 172 centimeters. So 170 upon 172 is her relative height. That means she is little shorter to me. Or else this upon this. That means again it's a relative height. Logic samjha beta? So what is the meaning of relative density? Sometimes in future it is also going to be called specific gravity. It is also going to be called specific gravity, and it is known as weight of the body in the medium upon weight of the same body in air. Weight of the body in medium upon weight of the body in air. So if you want to write down the meaning, what is relative density? At the top of this assignment on left side, ऊपर या तो नीचे लिखो बेटा, relative density or specific gravity. Relative density or specific gravity means weight of body in air. I'm so sorry. Weight of body in the medium. Weight of body in the medium. To the weight of the body in air. To the weight of the body in air. Because normally when we find out the weight of the body, for example, I want to find out my weight. So obviously I am in air right now, right? When I am swimming underwater, or maybe I am standing on the floor of a swimming pool, and the height of the or the depth of the water is say 2 feet. My height is 5'8". So some portion of my body is underwater. So I will feel little loss in weight. Correct? So question number 2 का आंसर था बेटा थर्ड ऑप्शन. Melting point of ice, इसको आप होल्ड पे रख सकते हो. Reason. What is the effect of pressure on melting point and boiling point? What is the effect of impurities on melting point and boiling point? ये मैंने सिखाया नहीं अभी तक. इसलिए मैं बोला प्रैक्टिस पेपर 4 के पहले मैं डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ. तो आपको एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, डीसीटी के लिए कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, हाँ वो भी मालूम पड़ जाएगा. सर्कल करो इसको. असाइनमेंट 3 में भी बेटा देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन सर्कल करवाए थे. Because they were based on what is the effect of impurities on melting point and boiling point. So you can keep this question on hold. Third question on hold. Can see. Fourth question. अब ये fourth question है ना, that is actually speaking E equal to mc square. Einstein. There is relation between mass and energy, right? So suppose this is basically is used in nuclear reactions, nuclear fission and nuclear fusion. स्कूल में आप लोगों ने चेन रिएक्शन के बारे में सुना था. It is something like uranium 92-238 is bombarded by a neutron to give you barium, krypton and 3 neutrons. तो इसका लॉजिक ये था कि लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड का मास मैच होना चाहिए, लेकिन वो कभी भी मैच नहीं होते, कभी भी नहीं. तो फिर वो मास गया किधर? So Einstein says that the error in the mass is multiplied by square of speed of light to give you equivalent amount of energy. So that is the basic idea of making bombs, nuclear weapons. It is also used in nuclear reactors. Right now I am not going much in depth of this because this is officially part of your syllabus. NCERT book 2. The name of the topic is atomic physics and nuclear physics. So we are going to do this that time. What is ideology? What is Einstein's equation? E is equal to mc square आप लोगों ने सुना हो, but उसके पीछे का basic principle क्या था? When I add mass of the reactants and when I add mass of the products, according to law of conservation of mass, left hand side और right hand side का mass match होना चाहिए. लेकिन ये mass कोई भी reaction के लिए कभी भी match नहीं होता है, कभी भी नहीं. Right? So what is this? Where is this mass gone? That mass is observed in the form of energy.
So Einstein never said, ध्यान से सुनो, Einstein never said कि mass is converted into energy or energy is converted into mass. Einstein said mass can be expressed in terms of joule and energy can be expressed in terms of kilogram. When I am explaining something, no discussion. You are missing out some very important information. क्या बोला अभी मैंने? Last दो sentence repeat करो दोनों लोग बेटा. क्या? Last दो sentence क्या बोला मैंने? You missed out something very important because this is misconception. मैं जब explain कर रहा हूँ वो टाइप पे discussion नहीं करने, वो बाद में करो बैठो. Einstein said that energy is converted into mass या तो mass is converted into energy is a wrong concept. Einstein said that अगर कुछ किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम या माइक्रोग्राम का एरर आया, right, then that is appeared in the form of joule. So Einstein never said that mass is converted into energy or energy is converted into mass. Einstein said that mass can be expressed in terms of joule and energy can be expressed in terms of kilogram. मतलब अगर मुझे कुछ mass का error मिला, so according to law of conservation of mass there is some failure. और या तो अगर मुझे एनर्जी में कुछ प्लस माइनस मिला, दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन. बट आइंस्टाइन सेड दैट मास एंड एनर्जी दे गो हैंड टू हैंड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. इफ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, देन व्हेन वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, द मास ऑफ वाटर शुड बी, मास ऑफ वाटर शुड रिमेन द सेम, राइट. अगर वो मास हम लोगों को सेम नहीं मिला, मान लो मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया था, तो मुझे 100 ग्राम ऑफ आइस मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 99.9999 मिला, तो 0.0001 का एरर किधर गया? दैट इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अनसीन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लॉजिक समझा? तो बाई चांस अगर मास में कुछ एरर मिला या तो एनर्जी में कुछ एरर मिला, वो किधर भी नहीं गया. इफ देयर वाज एरर इन मास, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी, and if there was error in energy, that is represented by error in mass. हमेशा ध्यान में रखो, E is equal to mc square में आइंस्टाइन ने ये नहीं बोला था कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास या तो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट. नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी लेता हूँ कि जिसको कन्वर्ट करके मैं मास में कन्वर्ट करूँ और वो मास गोल्ड के फॉर्म में होगा या तो प्लेटिनम के फॉर्म में होगा. मीन्स आई विल मेक सम एक्सपेंसिव मेटल, यूरेका डिस्कवरी, और ऐसा नहीं होता. लॉजिक समझा? ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 वाज डिमांडिंग लिटिल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. ओके, तो आपको जो सॉल्यूशन मिला है ना बेटा, व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम at 0 degree Celsius to form ice, then 80 calorie per gram of energy is given out, राइट. अब मान लो ये 80 नहीं मिला, मुझे 79.9999 मिला, राइट. तो 0.0001 है ना, that is explained in the form of Einstein's equation. So underline in the question mass energy equivalence, और वो जो mass energy equivalence है ना, उसके ऊपर लिखो डेल्टा E is equal to डेल्टा M into c square. या तो जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो. पहले कौन सा वर्ड है उधर क्वेश्चन में? मास की एनर्जी. हाँ, तो ऐसे लिखो बेटा, डेल्टा M into c square is डेल्टा E. This is mass energy equivalence. This is mass energy equivalence. समझा? क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा स्कूल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. 98.5 सेल्सियस नहीं हो सकता है, बिकॉज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर विच इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग आइस एट 0 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यू नो, इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में टेक इट एज रूम टेम्परेचर इज अराउंड एटलीस्ट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट. तो ये बेटा उसका एवरेज वैल्यू है, राइट. 14.5 टू 15.5 ये नंबर आपको याद रखना है, बिकॉज दैट इज वेयर यू फाइंड आउट द एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट. तो इन सम बोर्ड्स, राइट, देयर आर 5 बोर्ड्स, SSC, ICSE, CBSE, IB and IGCSE. एक दो बोर्ड में ये नहीं था, राइट. एक दो बोर्ड में ये डेफिनेशन था ही नहीं. तो खाली इधर जिनको नहीं था ना बेटा ये स्कूल में, उधर लिख के रखो डेफिनेशन ऑफ अ कैलोरी.
और उसमें आपको ये टेम्परेचर का वैल्यूज याद रखना है। 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस मतलब आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। एवरीबडी हियर, ये फॉर्मूला है अपने पास। विच क्वेश्चन इज गोइंग ऑन प्लीज? फिफ्थ, राइट? तो यही फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ ना, CQ इज इक्वल टू dQ अपॉन mdt। अब ये हो गया बेटा 14.5 टू 15.5, दैट मींस 15.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 14.5 डिग्री सेल्सियस हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। मास उन्होंने 1 ग्राम दिया है, क्यों? क्योंकि उनको 1 कैलोरी चाहिए। अगर 1 किलो कैलोरी चाहिए तो 1 किलोग्राम बोलेंगे, समझा बेटा? तो जो बोर्ड्स में 10th स्टैंडर्ड के जो भी बोर्ड में ये डेफिनेशन नहीं था, उनको ये नंबर्स नहीं पता है 14.5 टू 15.5, तो आप लोग लिख के रखो, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ कैलोरी। अगर ये किलो कैलोरी होता तो क्या होता बेटा? किलो कैलोरी होता तो 1 किलोग्राम। अच्छा, वो जो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर, that is the standard pressure of air. That means when you take barometer, in the barometric tube, mercury will stop at 760 millimeter. That is called 76 centimeter, and that is called 0.76 meter. अभी बेटा मैं एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर का वैल्यू प्रूव कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर का वैल्यू प्रूव कर रहा हूँ एट एनटीपी। नॉर्मली फिजिक्स में बेटा हम लोग एनटीपी ही बोलते हैं, राइट? केमिस्ट्री में एसटीपी और एनटीपी दो अलग अलग बोलते हैं। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। केमिस्ट्री में ये पार्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उधर टेम्परेचर क्या लेते हैं? एसटीपी पे 20। हाँ, तो हम लोग फिजिक्स में राउंड फिगर लेते हैं, अराउंड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एट एनटीपी ये वर्ड आ चुका कि नहीं? केमिकल इक्विलिब्रियम। एट एनटीपी द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर is calculated using the formula H into D into G. H का मतलब है height of mercury in barometric tube. Height of mercury in barometric tube. And then that barometric tube height of mercury is observed as 0.76 meter. D का मतलब है density of mercury. Mind you, mercury is a very heavy liquid. वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब सपोज मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक ये हाथ में रखा, एक ये हाथ में रखा, इसमें पानी है और उसमें उतनी ही हाइट का मर्क्यूरी है, तो ये मुझे 13.6 टाइम्स हैवी लगेगा। मुझे सेम वेट फील नहीं होगा। जो हाथ में मर्क्यूरी का टेस्ट ट्यूब है वो मुझे बहुत ज्यादा हैवी लगेगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ वेरी हैवी लिक्विड। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर मीन्स व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट अर्थ, नो? सो फॉर अर्थ ग्रेविटी शुड बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा आज के बाद याद रखो, ये प्रेशर का फॉर्मूला है HDG, राइट? लिखने की जरूरत नहीं है, आईपैड नोट्स में दिया है मैंने, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। Pressure is 0.76 into 13,600 into 9.8। तो ये आंसर सॉल्व करके आता है बेटा 1.013 into 10 to the power plus 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर 1.013 into 10 to the power plus 69 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज प्रॉब्लम MKS में भी हो सकता है, प्रॉब्लम CGS में भी हो सकता है। विल यू प्लीज क्रॉस चेक iPad notes में किधर है ये? Page 2, it is there, right? So no need to copy. No need to copy. This is iPad notes, page 2. You can refer that. You can refer that for the time being. I am waiting. The meaning of atmospheric air pressure is this. Okay? Back to the question. Question number 1 to 5 समझा बेटा? Sure. At atmospheric air pressure, the water boils at 100 degrees Celsius. When the pressure is reduced, it will boil at lower temperature because pressure is proportional to temperature. 7th question, mast question है. If the temperature scale is changed from degree centigrade to degree Fahrenheit, then the numerical value of specific heat will, common sense apply करो बेटा, common sense apply करो, C depends on temperature inversely,
ये फिलहाल डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर ये डिग्री फ़ारेनहीट में चला गया then can I say the size of the division will reduce? Yes or no? And therefore your answer will reduce. या तो you can say Fahrenheit का value is increased. Fahrenheit में the value is increased. 37 degree Celsius is equal to 98.6 degree Fahrenheit. तो मान लो ये 37 डिग्री सेल्सियस था, अगर उसको मैं फ़ारेनहीट में लिखता हूँ तो ये 98.6 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा तो सी का वैल्यू कम हुआ। समझा बेटा कि वापस बोलो? श्योर? आप एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लो, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 98.6 फ़ारेनहीट। अब वो सेल्सियस में क्या था? 37। तो अगर ये 37 था तो मेरा सी का कुछ आंसर आया। अभी मुझे करना कुछ नहीं है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है ना, उसके बदले मैं इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट लिखता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन वैल्यू वाइज ये बढ़ गया तो वैल्यू वाइज सी का आंसर अभी पर डिग्री फ़ारेनहीट में आएगा और वो कम नंबर होगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन, सोचना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन समझा? इन योर सोल्यूशन इट इज गिवन वेरी ब्यूटीफुल, द सोल्यूशन व्हिच आई हैव गिवन इट इज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली। In supplying 400 question number 8, in supplying 400 calories of heat to the system, the work done will be कम टू ज्यादा क्या करने का बेटा? मल्टीप्लाई बाय जे वैल्यू। अभी ये सोचने का कि 4.2 की 4200, करेक्ट, बिकॉज प्रॉब्लम कैलोरी का था, अगर प्रॉब्लम किलो कैलोरी का होता तो यस। आई होप एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आई होप आई एम रीजनेबली स्लो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 9. The temperature of I was talking about this beta. I was talking about this. When you think about Niagara Falls, Canada or USA. When you think about Victoria Falls, Africa. So the water is falling from this height to this. Now you are a tourist and you are taking shower below the dam. So mgh will be converted into mc theta. सो जो वाटर का टेम्परेचर इधर है, राइट, वो वाटर का टेम्परेचर इधर थोड़ा ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि ये कितने हाइट से गिर रहा है, ये कितने हाइट से गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज इक्वल टू जे क्यू, तो हियर द प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ हाइट की वेलोसिटी, हाइट, राइट। सो एम जी एच इज जे टाइम्स एम सी थीटा, यस और नो, एंड देयरफॉर थीटा is gh upon jc, yes or no? थीटा डिपेंड्स ऑन हाइट, करेक्ट। तो ये जो हाइट से गिरा नीचे सामने उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो सपोज टेम्परेचर हियर इज 15 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर हियर विल बी लिटिल मोर देन 15। अब वो लिटिल मोर देन मतलब कितना? 15.1, 15.2, 15.3, that will be decided by the height. Greater the height from which the fall water is coming, greater will be the temperature difference. लॉजिक समझा बेटा? सुपर श्योर, एकदम अच्छे से समझा। एक छोटा सा वैल्यू शायद मैंने दिया होगा आईपैड नोट्स में, ये जो G अपॉन JC है ना, G अपॉन JC, ये एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है। दिस G अपॉन JC, दिस रेशियो विच यू सी नो, G अपॉन JC, दिस इज 0.0023। उसका रीजन बोलता हूँ, we are talking, अच्छा, this value is only for water, हाँ, only for water, क्योंकि वाटर है मतलब हम लोगों को स्पेसिफिक हीट का स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है। अर्थ के लिए हम लोगों को G मालूम है 9.8, J मालूम है 4200, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, आप कोई भी डैम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, भाखरा नांगल डैम, भूशी डैम इन लोनावाला, राइट, कैनेडा, नायग्रा फॉल्स, राइट, देन विक्टोरिया फॉल्स, that means everywhere you are talking about a fall, mean definitely you are talking about the liquid as water, so specific it is 1. तो बेटा ये G अपॉन JC मेरे हिसाब से शायद आईपैड नोट्स में किधर दिया होगा, अगर G अपॉन JC का कोई प्रॉब्लम होगा तो, और अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स कौन से मैं आपको अब भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिस पेपर 4 में। प्रैक्टिस पेपर 4 में बेटा एक क्वेश्चन आपका है 11 और एक क्वेश्चन शायद आगे भी था 27th, 11th and 27th. My suggestion, and this is iPad notes. मैं डिक्टेट करता हूँ कि क्या मतलब क्या टाइप में वो लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। टेक डाउन। In case of MCQ,
related to. In case of MCQ, इधर देखो बेटा, शायद ये आपका पेज ब्लैंक होगा iPad नोट्स में, उधर ही लिख लो, because this is a very standard problem. In case of problem related to a fall, in case of problem related to a fall, ब्रैकेट में लिखो, for example Niagara Fall, Victoria Fall, etc. Bracket over. In case of MCQ related to a fall, right? For example, Niagara Fall, Victoria Fall, etc. Bracket over. The formula used is. अभी बेटा ये as it is copy करो. और बाद में लिखोगे कि ये जो मैंने G अपॉन GC हाईलाइट किया है ना, दिस वैल्यू इज 0.0023. इसका फायदा क्या है मालूम है? अगर आपको G अपॉन GC का वैल्यू याद है तो आपको खाली हाइट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. मान लो मैंने बोला कि हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर, 11th या तो 20 दो में से एक क्वेश्चन में शायद वो हाइट 100 मीटर है, तो मुझे सिर्फ 0.0023 को 100 मीटर से मल्टीप्लाई करना है. मींस माय आंसर विल बी 0.23 डिग्री सेल्सियस. 11th या तो 24th, दो में से एक क्वेश्चन में हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देने का. ओके, प्लीज टेक डाउन दिस एज इट इज. जो वैल्यू मैंने हाईलाइट किया उसको हाईलाइट भी करो. वो मैंने जो लिखाया था ना अभी, इन केस ऑफ एमसीक्यू रिलेटेड टू फॉल, उसको वाटरफॉल कर दो. इट इज वेरी एविडेंट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, राइट? लिखा बेटा? ये पार्ट आ रहा है वीडियो में. चल नेक्स्ट. सो वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 9. सोचो बेटा, वाटर इधर था, टेम्परेचर था थीटा, वाटर इधर है, टेम्परेचर है थीटा डैश, तो थीटा डैश इज मोर कि थीटा डैश इज लेस? अरे इधर जो टेम्परेचर था, इधर टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा ना. पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. चेक करो, जो मैंने सोल्यूशन दिया उसका लैंग्वेज चेक करो. व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉजिंग राइज इन टेम्परेचर, राइट? व्हाट इज द फैक्टर बाय विच देयर इज राइज इन टेम्परेचर? द वैल्यू 0.0023. क्वेश्चन नंबर 10. मस्त क्वेश्चन. मार्क इट 5 स्टार. Hailstone मालूम है ना? Snowflakes. When you go to some very cold place, right? Snowfall जो होता है उसमें कभी कभी ना एकदम हार्ड क्यूब्स गिरते हैं अपने बॉडी पे, लग सकता है. It's very risky. Hailstone at 0 degrees Celsius falls from a height of 1 kilometer. Underline kilometer. 1 kilometer is 1000 meter, mind you. On an insulating surface, converting the whole of the ice. मतलब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया. Underline the whole of the ice melting into heat. Then what part of heat will be melting? पूछने का स्टाइल एकदम मस्त, एकदम बेटा ध्यान से सुनो. Please help me with the question number 10. W is equal to JH या तो JQ. W is equal to MGH, right? This is J is equal to, अभी आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट. So this should be written as ML. Now very very important, उन्होंने क्या बोला है? What part of ice is melting? What part of ice is melting? Yes or no? Everybody here. मतलब what proportion? Look at the options please. 1/33 and 1/8 and all that. Right? What portion of ice is melting? अभी ये जो MGH है,
दैट इज हेलस्टोन का mgh, पोटेंशियल एनर्जी। ये मास और ये मास कैंसिल किया तो फिर तुम लोग ढूंढ क्या रहे हो? उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ टोटल मास विच यू टुक व्हाट पोर्शन मेल्टेड, तो यहाँ पे बेटा लिखने का माई स्लाइस। दिस इज मास ऑफ आइस एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ आइस, राइट? सो mgh इज J टाइम्स मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। सो व्हाट इज मास ऑफ आइस अपॉन मास? ये फ्रैक्शन पूछा है, ये मास मैंने शिफ्ट किया। इज इट gh अपॉन jl? इज इट gh अपॉन jl? h का वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर, g का वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, h का वैल्यू 1000, j का वैल्यू 4200, l का वैल्यू 80, बराबर 1 2 3 1 2 3। So my numerator is 10 and my denominator is 42 exa 336। That means मेरा आंसर हो गया approximately 1/33.6। मतलब मेरा आंसर हो गया 1/33 approximately। मतलब अगर मेरे पास 33 ग्राम ऑफ आइस था तो उसमें से 1 ग्राम मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हुआ। इज दैट क्लियर? उन्होंने क्या बोला है? द होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मेल्टिंग ऑफ आइस। होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। अगर मैं ऐसा बोलता कि 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूज, तो यहाँ पे हाफ mgh। अगर मैं बोलता 25% तो 1/4। होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अंडरलाइन किया। होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बेटा मतलब 100%, एंड 100% मींस वैल्यू 1। समझा कि वापिस बोलूं? समझा? मेरे पास 33 ग्राम ऑफ आइस क्यूब था, वो ये हाइट से गिरने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ और वो हीट चेंज ऑफ स्टेट में यूज हुआ। तो आउट ऑफ 33 ग्राम कितना ग्राम मेल्ट हो गया? 1 ग्राम। मतलब 32 अभी भी सॉलिड स्टेट में। मस्त क्वेश्चन, ऑसम, 5 स्टार मार्क करो। अब ये क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्यूशन देने के बाद भी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। खाली सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, वो तो सब बुक्स में होता है। Whichever book you are following, at the end solutions are given. Question समझा? No need to write the solution. Understand the language, understand the concept. क्योंकि मैंने question solution तो बराबर से लिख के दिया ही है। So this was 10th question. This was 10th question. ये दोनों m सेम क्यों नहीं रखने का समझा? आपने ये भी m लिखा, ये भी m लिखा, तो आपने m ही कट कर दिया। तो फिर ढूंढ क्या रहे हो? एक मिनट, G मालूम है, H मालूम है, J मालूम है, L मालूम है, तो ढूंढ क्या रहे हो फिर? When you have all the numbers, there is no unknown, right? So be careful, please. Be careful. This was 10th question. अभी ऐसे हाइट वाले सिमिलर क्वेश्चंस ढूंढो जरा, मिलते हैं तो। मेरे हिसाब से 11th है और 13th हाफ mv स्क्वायर वाला है। एक मिनट, मैं ढूंढ के देता हूँ आप लोगों को। 18th, हाँ 19th, करेक्ट, थैंक यू। 19th, थैंक यू, यस। 11th, 19th, 11th टेम्परेचर वाला था, सॉरी। अभी हम लोगों ने कौन सा सॉल्व किया? 10th। तो 10th में लिख के रखो सॉल्व 19th, और कोई मिलता है क्या? जी 26, लेट मी चेक, यस बेटा 26, वेरी गुड। 11th में 10th में लिखो सॉल्व 19th and 26, right. Solve 19th and 26। अब एक काम करो बेटा, मैंने ये एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप 19th क्वेश्चन रीड करो, उसका सोल्यूशन रीड करो, 26 का सोल्यूशन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, तो वी कैन सेव टाइम, है ना? 10th क्वेश्चन में लिखो सॉल्व 19th and 26। 19th and 26 दोनों में लिखो सेम एज 11th। आई एम वेटिंग फॉर यू, I am waiting for you. Please go through those questions. अरे I'm so sorry. मैं भूल गया, I'm so sorry. जरा चेक करो और मुझे बताओ बेटा 19 और 26 समझा क्या?
बोर्ड पे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? प्लीज लेट मी नो। समझा? आर वी ऑन 11th क्वेश्चन नाउ? इसमें Q इक्वल टू ml यूज किया था, उसमें Q इक्वल टू mc थीटा यूज करना है, उसमें Q इक्वल टू mc फिलिंग कोड। अब 11th क्वेश्चन में वी हैव टू यूज Q इक्वल टू mc थीटा। 11th क्वेश्चन मस्त। Water is falling from a height of 210 meter. Assuming that the energy due to its fall is converted into heat, then what will be the rise in temperature? अभी यही सिखाया था बेटा मैंने, वो फॉर्मूला वो, राइट? ये आप लोगों ने आईपैड नोट्स में लिखा है, तो उसमें लिखो रिफरिंग द आईपैड नोट्स, थीटा इज इक्वल टू GH अपॉन JC। इसमें G अपॉन JC का वैल्यू स्टैंडर्ड है 0.0023, उसको 210 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर वो कैलकुलेशन कैसे करने का? 11th क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू GH अपॉन JC, तो G अपॉन JC को साइड में करने का। व्हाट इज दैट वैल्यू? 0.0023 इनटू H का वैल्यू कितना दिया? 210। सो इज इट 23 अपॉन 10,000 इनटू 210, एक जीरो कट हुआ, 23 21 सा 460 प्लस 23 483, 460 प्लस 23 बराबर 483 अपॉन 1000, दैट मींस 0.483, अप्रोक्सीमेटली 0.49 बराबर। तो आपको GH अपॉन JC में G अपॉन JC मालूम है ऑलवेज, बिकॉज ये वाटरफॉल का ही क्वेश्चन होगा, ऐसे थोड़ी होगा ऑयल इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ, मिल्क इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ, राइट? ग्लिसरीन इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अल्कोहल इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ। बड़े खुश हो गए, वाटर के नाम पे तो खुश नहीं हुए थे, है ना? चॉकलेट वाटरफॉल भी हो सकता है, वेरी गुड है। स्विट्जरलैंड कोई एक स्विस फैक्ट्री में है, डेनमार्क में भी है। हाँ तो बेटा यहाँ पे G क्या यूज कर रही है? 9.8 की 980? 9.8 ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है ना। किलो कैलोरीज MKS, कैलोरीज CGS, तो तूने 9.8 यूज किया कि 980? परफेक्ट, क्योंकि C से वो जजमेंट नहीं ले सकते हम लोग। C इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, इज ऑल्सो 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो जजमेंट G से लेने का कि G तू 9.8 यूज कर रही है तो J का वैल्यू 4200, और G अगर 980 यूज करे तो 4.2। अच्छा 11th क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चंस भी बेटा बता देता हूँ, तो थोड़ा आपका टाइम सेव होगा, इफ यू कैन हेल्प मी। सॉरी 27, लेट मी चेक, परफेक्ट। और कोई मिला? 19, लेट मी चेक 19, नहीं बेटा 19 नहीं, सॉरी एक ही क्वेश्चन है ना। 11th में लिखो सॉल्व, कौन सा बोला आप लोगों ने? 27। 11th में लिखो सॉल्व 27, 27 में लिखो रिफर 11। यस, चलो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। एट 100 डिग्री सेल्सियस द सब्सटेंस दैट कॉजेस मोस्ट सीवियर बर्स्ट। मैंने बोला था ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज हार्मफुल कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम इज हार्मफुल? रीजन, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब आप लोग यहाँ पे रुक गए Q3 पे, स्टीम एट 100 मतलब आपने Q4 ऐड किया उसमें, एंड दैट वैल्यू इज 540 कैलोरी पर ग्राम, राइट? दैट मींस इफ यू हैव गॉट 100 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू 100 ग्राम ऑफ स्टीम, you got 54,000 calorie extra. So which is more dangerous to human skin? Boiling water ki steam? Water at 100 ki steam at 100? Question number 13. मस्त क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है। खोपड़ी मार्क करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आपके पास बोर्ड पे ऑप्शंस है, आपके पास बोर्ड पे ऑप्शन है, W is JQ, W can be half mv square also, mgh also. अब तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए mgh के थे, राइट? Q can be ml also, mc theta also. सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला? लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ mv स्क्वायर, और उन्होंने ये बोला है कि 50% ऑफ इट इज यूज्ड, मतलब पूरा का पूरा 100% यूज नहीं हुआ है।
That is the place where you have to be careful. That is the place where you have to be careful. So 13th question में do we say W is equal to JQ? 50% of kinetic energy of the bullet heat में convert हुआ है. 50%. Right? This is JQ. Problem melting of bullet का है कि rising temperature का है? So is it MC theta? Now 50% of KE मतलब पहले तो 50% का half आया और KE का एक और बार half आया. So half into half mv square is j times mc theta. Yes or no? M is gone. 1/4 of v square is equal to j c theta. मेरे हिसाब से थीटा पूछा होगा तो पहले तो थीटा का फॉर्मूला लेके आओ. What is it? Is it v square upon 4jc? सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा. उन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया हुआ बिकॉज बुलेट इज मेड अप आउट ऑफ लेड. इसलिए कभी भी किसी को गोली लगती है ना तो इंसान वो मर भी नहीं गया, सिर्फ हर्ट भी हुआ है तो भी वो सबसे पहले बुलेट बाहर निकालना पड़ता है बॉडी में से बिकॉज लेड इज पॉइजनस, गैंग्रीन हो जाता है. राइट? आप कभी भी देखो कोई सपोज टेररिस्ट है, भाग गया, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो टेररिस्ट है तो खुद ही है ना कुछ तो मेटल गर्म करके खुद ही बुलेट निकालने की ट्राई करेगा क्योंकि वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकता है. अदरवाइज ही विल हैव टू रिवील द आइडेंटिटी. उनको गोली कैसे लगा तो उसको बोला बड़ा पुलिस का गोली लगा या तो दिखेगा ही ना वो टेररिस्ट, पुलिस के यूनिफॉर्म में थोड़ी है. तो समटाइम्स व्हेन दे कांट गो टू द डॉक्टर्स दे आर ट्रेन्ड दैट वे कि यू आर अ टेररिस्ट बॉस, मर जाओ एक बार लेकिन सीक्रेट रिवील मत करना किसके लिए काम कर रहे हो. तो एक बार मर जाएंगे लेकिन सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे. सो दे विल रिमूव द बुलेट ऑन देयर ओन. लॉजिक समझा? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 कि जैसा क्वेश्चन कोई मिल रहा है तो देखो 13 के जैसा अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो देखो. सॉरी 17 बेटा टफ है, 17 थोड़ा टफ है, मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि उसमें आयरन और नेल, राइट, हैमर और नेल दो अलग अलग चीजें हैं. यू आर यूजिंग द हैमर टू पुट द नेल इन द वॉल. तो हैमर का और नेल का मास अलग अलग होगा. यहाँ पे मैं मास कैंसिल कर पाया, राइट. आगे एक क्वेश्चन गया उसमें हम लोगों ने मास कैंसिल नहीं किया था क्योंकि एक में m लिखा था एक में माइस लिखा था. तो आप m कैंसिल नहीं कर सकते. एक था मास ऑफ हेलस्टोन और एक था मास व्हिच वाज मेल्टिंग, दैट मींस इट वाज मास ऑफ आइस. तो 17 क्वेश्चन टफ है. 17 खतरा मार्क करके रखो. 17 इज कोबडी क्यूब, वो मैं सॉल्व करूंगा. आर यू ऑन 14th क्वेश्चन? व्हेन द प्रेशर ऑन वाटर इज इंक्रीज्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, माइंड यू ये आर्टिकल भी आप होल्ड पे रख सकते हो. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यू कैन कीप दिस क्वेश्चंस ऑन होल्ड. आई हैव नॉट येट एक्सप्लेन. सो आगे क्वेश्चन नंबर 3 होल्ड पे था, अभी क्वेश्चन नंबर 14 होल्ड पे है, राइट. नेक्स्ट वन, a liquid boils when the vapor pressure is equal to, ये बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, when the vapor pressure becomes atmospheric air pressure. When the vapor pressure becomes atmospheric air pressure, the liquid boils. अभी मून पे क्या होता है मालूम है? मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो आपने अगर उधर वाटर बॉटल लिया और ओपन किया तो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. मतलब उधर वाटर बॉटल ओपन करने के साथ मुझे अगर पानी पीना है ना तो आई विल कीप माई वाटर बॉटल दिस वे, राइट. ये मैंने बॉटल ओपन किया, बिफोर इट गेट्स वेपराइज्ड आई विल ड्रिंक, अदरवाइज इट विल वेपराइज. क्या पियोगे? तो मून पे ये सब कंडीशंस होते हैं. मींस एस्ट्रोनॉट्स आर सो ट्रेन्ड कि उधर क्या क्या डिफिकल्टी आएगी तुम लोगों को. ओके, जीरो ग्रेविटी कंडीशंस, नॉजियाटिक काइंड ऑफ फीलिंग, गिडीनेस एक्सेट्रा. सो एक डेफिनेशन लिख के रखो बेटा, शायद मैंने लिखा होगा सॉल्यूशन में, या तो एक डेफिनेशन लिख के रखो. बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर मैचेस विद वेपर प्रेशर. ये भी एक नया पॉइंट है, तो इसको भी आपको आईपैड नोट्स पे ऐड करना है तो कर सकते हो. बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन, बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन atmospheric pressure matches with vapor pressure. Atmospheric pressure matches with vapor pressure, matches with या तो is equal to vapor pressure.
So इसमें एक मस्त क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को एक्सटर्नल बुक में मिल जाएगा या तो अपने आगे वाले प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा कि when a closed bottle filled with water is taken on moon and it is open, what happens? Water starts boiling. Is that clear? Question number 16. The freezing point of liquid decreases when the pressure. Acha, this is effect of pressure on boiling point, freezing point, etc. You can keep it on hold. 16th question hold पे रखो बेटा. 17th question as I told you, सतरा खतरा. 17th question as I told you, सतरा खतरा. Be careful please. Be careful. दो अलग अलग चीजें हैं. A hammer of mass 1 kilogram. I want you to underline hammer of mass 1 kilogram. With the speed of 50 meters per second is hitting an iron nail of mass 200 gram. Iron nail का mass 200 gram. Underline iron nail of mass 200 gram. Okay. If the specific heat of iron is 0.105 calorie per gram per Celsius, right? And half the energy is converted into heat. Half the energy is converted into heat मतलब who is giving energy and who is taking energy? Hammer और nail है ना बेटा? तो who is giving energy and who is taking energy? So hammer is giving how much energy? The complete energy or half of it? Half of it, right? Half of what? mgh की half mv square. Exactly. इसलिए बेटा ये question tricky था. हाँ एकदम ध्यान से सुनो. Everybody try to understand the language. W is equal to jq. This is of the hammer. Work is done by the hammer and heat is created in nail. बराबर. तो ये जब मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा? 50% of half mass of the hammer, velocity of the hammer square. This is J times mass of the nail, specific heat of the nail, temperature difference. ये बेटा सिंबल्स लिखना क्यों जरूरी है समझा? अगर आपने ये सिंबल्स नहीं लिखा ना, सपोज इसको भी m लिखा और इसको भी m लिखा, you will be tempted to cancel them. How can you cancel them? एक का मास 1 किलोग्राम है और एक का मास 200 ग्राम है. पूछा क्या है? पूछा क्या? Raise in temperature. Theta, right? Now what is 50%? Half into half. Please help me with mass of hammer. 1 kg. Velocity of hammer. 50 meter per second. So 50 का square is equal to J 4200. Mass of the nail 200 gram. That means 0.2. 2 upon 10. Specific heat. Copper अपना nail का material दिया होगा ना, iron nail है. 0.105. So can I write this as 105 upon 1000 delta theta. Delta theta is the only unknown. समझा बेटा? समझा? Shall I leave the calculation part up to you? Question लिखने का स्टाइल समझा? 25 upon 25 upon 168 into 21. कोई बात नहीं. तो बेटा इसको 24 ले लो approximately 24 upon 168 into 21. So this becomes 8 threes are and this becomes 7 threes are, right? 8 twos are 16, right? And 8 ones are 8. So 1 upon 147, approximately 1 upon 150. समझा कैसे करने का? और बाद में ऐसा नंबर कैसे सॉल्व करने का मैंने हमेशा सिखाया था. इसको तब तक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, 100, 1000 करते जाओ जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो जाता. 156 जा 900, राइट? जरा कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट है ना कि गड़बड़ किया है? मुझे थोड़ा डाउट है. हाँ इतना कम टेम्परेचर राइज नहीं होगा. ये तेरा कैलकुलेशंस गलत है बेटा. ये तेरा कैलकुलेशंस गलत है. चलो ठीक है करके बताता हूँ. 1 2 this is 2500 upon 4. This is 42 twos are 84 into 105 upon 10 and 10 into delta theta. So delta theta is equal to 2500 into 100 upon 4 into 105 into 84.
So this is 250000. This is 105 fours are 420 into 84. तूने मुझे रेशियो ही उल्टा बोला था पूरा. तूने मुझे ये रेशियो ऐसे बोला था. अभी आ जाएगा. यस और नो? इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके 85 ले लो तो 5 के टेबल में जाएगा. तो आंसर इज 7 पॉइंट समथिंग. राइट. नेक्स्ट. Which of the following is having maximum specific heat? Water. See, that is the reason when you drive the cars, when you go for a long drive, तो रेडिएटर में बीच बीच में पानी डालना जरूरी होता है, कूलेंट डालना जरूरी होता है. Because when lot of work is done, you are driving for long hours, then the engine is liberating heat, and if this heat remains inside the car, it is dangerous. तो बीच बीच में कूलेंट डालना पड़ता है. आपका गाड़ी जब सर्विसिंग के लिए जाता है 1-1.5 महीने के बाद, तो वहाँ से टेक्नीशियन का फोन आ जाएगा कि सर कूलेंट बदलना पड़ेगा. जैसा अदरवाइज जब आप ये 1 महीने के दौरान ड्राइव करते हो, बीच बीच में वो ओपन करके उसमें पानी डालते रहने का. वाटर हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट. एक कार इंजन वाला क्वेश्चन भी होगा कि व्हाई डू वी प्रीफर वाटर एज अ कूलेंट. कौन सा क्वेश्चन? सेम पेपर में. वेरी गुड, वेरी गुड. ओ यस, परफेक्ट. वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट इज हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखो सॉल्ट 21 और 21 में लिखो रिफर 18. बोलो क्या हुआ बेटा? कैलकुलेशन समझा इसका? उसने वो मुझे रेसिप्रोकल दिया था, इसलिए मैंने बोला एक बार चेक कर लेते सॉल्व करके. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू बी केयरफुल. अभी वो लोग चाहते ना आपका कैलकुलेशन सिंपल बनाना होता तो इसको राउंड फिगर करके 0.1 देते. उन्होंने 0.105 दिया. दैट मींस दे वांट टू वेस्ट योर टाइम. So this question usually comes in if you are a bio student, need section B. Otherwise, if you are a math student, this comes in PC अपना GW का पेपर. Okay. Question 17 समझा सबको? How many questions are there? Because I have to give you 15 minutes for the DCT. There are 15 MCQs. So we will stop at 20 today. We will stop at 20. Question number 18 हो गया. Question number 19. इसको होल्ड पे रखो. 19 थोड़ा लेंथी है, मेरे लिए छोड़ दो. Actually speaking, it is MGH is equal to ML. Hint दे दो. MGH is equal to ML. अलग अलग M यूज करना. अलग अलग M यूज करना. आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना. No problem. Question number 20. याद करो बेटा, what was latent heat of fusion of ice? Was it 80? And what was latent heat of vaporization steam? That means LV is always greater than LF. Latent heat of vaporization is always greater than latent heat of fusion. Right? Because solid से liquid state में जाने के लिए molecules को थोड़ा ही दूर जाना है, लेकिन liquid से gaseous state में बहुत दूर जाना है. So you need greater amount of energy. This is question number 20. 21 अपना ऑलरेडी हो चुका है. 22 में नहीं कर रहा हूँ. क्यों नहीं कर रहा हूँ? इधर देखो बेटा, मैंने जो प्रॉब्लम करवाया था वो यही था. मैंने जो खाली इसमें मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा डाला था. स्टीम एट 110. आपको स्टीम एट 100 पे रुकना है. आप लोगों ने शायद आईपैड नोट्स में ये प्रॉब्लम ऐड किया था. चेक करो प्लीज, या तो बुक में लास्ट पेज पे किया था. हाँ, तो 22 में लिख के रखो, वॉज ऑलरेडी डन बिफोर. So let me go up to 25 today. Let me go up to 25. 23rd question. The amount of heat required to raise the temperature of a body through 1 degree Kelvin. Mind you, dQ is equal to MC d theta. Either. Right? So if this is 1, that means dQ is MC. मतलब thermal capacity. dQ upon d theta is MC. d theta is 1. So dQ is MC and MC means thermal capacity. क्वेश्चन नंबर 24 एकदम इजी है बेटा. थर्मल कैपेसिटी पूछा है 40 ग्राम का और स्पेसिफिक हीट दिया 0.2. 40 into 0.2.
40 into 0.2. The definition is mass into specific heat. Last of the day. When we rub our palms, they get heated due to maximum temperature, but to a maximum temperature because heat is lost in the surrounding. अगर ये पूरा का पूरा हीट अपने बॉडी पे रहेगा ना, तो there will be skin burns. अगर मैं ये करते ही रहूँ और सराउंडिंग में हीट जाता ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा मेरे स्किन पे. So after rubbing my palms for more number of minutes, I may have skin burns, but that is not happening because the heat keeps going to the sun. मुझे खाली याद करना, प्रैक्टिस पेपर 4 में हम लोगों को 25th से कंटिन्यू करना है, 26th से. ओके, और ये जो बाकी की क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा. I am meeting you on Monday now because Friday you have got my sir's lecture. चलो be ready. You have to write your DCT. Recording पर.